Hello everyone. So yesterday we talked about the position of an angle, then corresponding values for the different trigonometry ratios. Okay, so now we have to calculate the value of sine 11 pi by 3. Okay, second tan 9 pi by 4. Third sec 13 pi by 6. And cot, let's assume that cot 23 pi by 4. Okay, so try to find out the value for this, all this. Okay, what will the value of sine 11 pi by 3, sine 9 pi by 4, sine 13 pi by 6, and sine not sine tan 9 pi by 4, sec 13 pi by 6, and cot 23 pi by 4. So try to evaluate the value of this, okay, with the help of the previous concept. Okay, so when you have the value or when you have the angle greater than the 90 degree, okay, जो आपको 10 तक टेबल पढ़ाया गया था उससे भी एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है. So what is the method to solve? The method to solve is first we have to locate the position of angle. Okay, in that there will be the one term which will be related with the pi, another term which will be related with the theta. So recognize your theta, recognize the position. Okay, when you got the two things, after that you can solve this thing. Okay, ये सारे problems आपसे solve होगा. अभी मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिया, इसमें से कोई क्वेश्चन मुझे करना है तो प्लीज स्पीक. कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है मैं अभी एक बता देता हूँ, और रेस्ट जो 3 है वो आप ट्राई करोगे. बताइए कौन सा क्वेश्चन करना होगा मुझे. एनीवन स्पीक. व्हिच वन. हेलो, am I audible to everyone? Gauri? Yes. Okay, tell me the which question do you want. ऐसा कौन सा क्वेश्चन आप चाहते हो कि मैं सॉल्व करूं. शुक्ला जी, second one, Riya is in second one, no issue. Tan 9 pi by 4. Okay, so tan, listen, what we have in denominator, we have 4. So please try to what, write down the numerator part, numerator part, the in terms of the factor of 4. जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसी का फैक्टर हम ऊपर में एडजस्ट करेंगे. ओके, सो कैन वी राइट डाउन द 9 पाई को हम कैसे लिख सकते हैं. तो नीचे में 4 है तो 4 का सारे बताइए मल्टीपल्स क्या होगा. 8. तो 8 पाई प्लस 1 में नहीं लिखना, 8 पाई प्लस पाई. वी आर राइटिंग एग्जैक्टली, वी आर राइटिंग द व्हाट, we are writing 9 pi equal to, so can we write on 8 pi plus pi divided by 4. After that can we write on, this is basically tan 8 pi by, if you separate this, can we write on the 8 pi by 4 plus pi by 4. Okay, after that if I divide this 8 pi by 4, that will be equal to 2 pi plus what about this part, pi by 4. Understood. Now when you got this thing, that any trigonometry ratio, then multiple of pi plus or minus some angle. Okay, after this you have to predict two things from here. The first thing, what is the position and what is the theta. So what is the theta? Theta is this. Theta means जो आपका जो बचपन वाला टेबल है ना वो वाला theta. Theta is this. Okay, now tell me the position. कौन से quadrant में है ये. So when we talk about 2 pi right side or left side? Quadrant. 2 pi left side or right side? राइट साइड में प्लस करेंगे तो राइट साइड में प्लस करेंगे तो ऊपर जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट. these two parameter 2 pi plus define the quadrant मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट. and if you look at the pi by 4 is lies between 0 to 90 degree, that's why it is treated as theta. तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, in first quadrant tan is ऑल पॉजिटिव. तो tan भी क्या होगा, पॉजिटिव होता है. प्लस और इन सबको हम छोड़ देंगे, सिर्फ tan थीटा लिखेंगे. तो tan थीटा मींस व्हाट, tan pi by 4. ओके, तो सर आपने 2 pi प्लस का काम क्या किया. तो सर हमने जो 2 pi प्लस का काम किया है वो ये किया है कि हम लोकेट कर रहे हैं कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है. अंडरस्टूड. तो 2 pi प्लस का सिर्फ इतना ही वर्क होता है यहाँ पे
कि आप उसे लोकेट कर पाइए कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। जब आप लोकेट कर पाओगे तब आप पता कर पाओगे कि उस क्वाड्रेंट में वो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अंडरस्टूड? सो 2 पाई प्लस गिव्स अस द पोजीशन और लोकेशन ऑफ दैट एंगल। अंडरस्टूड? and your theta should be lies between 0 to 90 degree. Okay, the theta यहाँ पे कितना है, pi by 4, it means 45 degree. That's why हमने जो इसको separate करके लिखा है, that is totally right. Understood? Yes? Hello? Okay, that's why it is 2 pi plus pi by 4. The 2 pi plus कर दी हम यहाँ पे ये करें, मतलब वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते, वैल्यू हम उसका नहीं निकालेंगे, दैट जस्ट गिव द व्हाट लोकेशन और पोजीशन। तो प्लस आ गया tan pi by 4. व्हाट इज tan pi by 4? tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री पता नहीं आप लोगों को tan 45 डिग्री कितना? 1। तो आंसर इज 1। अच्छा, मैं इनके लिए एक शॉर्टकट भी मैं आपको सिखा देता हूँ और कैसे करना है। पहले आप यहाँ पे 0 डिग्री लीजिए, 30 डिग्री जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। देन यहाँ पे लिखिए साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे टैन थीटा। तो पहले साइन के लिए इवैल्यूएट कर लो, उसके बाद कॉस टैन अपने आप आ जाएगा। तो साइन के लिए स्टार्ट जो होगा, पहला क्या है, साइन है ना, और ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, साइन भी स्टार्ट होता है 0। तो पहले 0 लिखो, फिर 1 लिखो, 2 लिखो, 3, देन क्या करो 4 लिखो। अब सारे टर्म को 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड ईच टर्म बाय 4। हर एक टर्म को आप क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना, ठीक है। किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। फिर सारे टर्म को 4 से डिवाइड करने के बाद आप रूट ले लीजिए, ठीक है, रूट ले लीजिए। तो साइन थीटा का जो बेसिकली वैल्यू मिलेगा, कितना मिलेगा 0 डिग्री के लिए, रूट ओवर 0 इज 0, रूट ओवर 4 इज 2, तो 0/2 इज 0। तो साइन 0 इज 0। ओके, रूट ओवर 1 इज 1 एंड रूट ओवर 4 इज 2, तो कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री 1/2। व्हाट अबाउट द 45 डिग्री? 45 डिग्री कितना होगा? तो 2/4 है, दैट इज 1/2। 1/2 का रूट कितना होगा? 1 का रूट तो 1 होगा, ओके 1, और इसका रूट कितना होगा? 4 का रूट, नीचे में 2 बचेगा, 2 का रूट कितना होगा? √2। अंडरस्टूड ना? 2/4 को हम कट करके कितना लिखेंगे? 1/2 ना, मीन्स रूट ओवर 1/2 कितना हो जाएगा आपका? 1 का रूट तो 1 एंड √2 कितना हो जाएगा? 1/√2। 1/√2 ओनली। ओके, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? 60 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? 60, √3 का वैल्यू √3 रहेगा, ओके, और √4 का वैल्यू कितना होगा? 2, एंड व्हाट अबाउट फॉर 90? 4/4 कितना हो गया? 1, रूट ओवर 1 इज 1। सो दिस इज द वैल्यू फॉर साइन, ओके, ये आपको कंपलसरी याद रखना है। व्हाट अबाउट द कॉस? द कॉस थीटा में जस्ट उल्टा कर लो, जो 0 से स्टार्ट किया था आप 1 से स्टार्ट कर लो, 1, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? √3/2, फिर कितना होगा? 1/√2, मिडल वाला पार्ट है, फिर 1/2 एंड 0। व्हाट अबाउट फॉर टैन? तो यदि आपका ये कॉस का है तो टैन में क्या करना है? टैन थीटा, फॉर द टैन थीटा you just have to divide this। तो 0 को डिवाइड करोगे 1 से, कितना मिलता है? 0। 1/2 डिवाइडेड √3/2, यदि इनको डिवाइड करोगे 2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 1/√3। नाउ इफ यू डिवाइड दिस सेम तो 1, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? √3, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? इंफिनिटी। सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड ऑलवेज, ओके। नाउ इफ यू गॉट ऑल दिस, देन प्लीज ट्राई टू सॉल्व द रिमेनिंग प्रॉब्लम, sin 11 pi/3, sec 13 pi/6 and cot 23 pi/4। okay, do this। आपने कौन सा मेथड को अडॉप्ट किया यहाँ पे बताइए? द फर्स्ट वन और सेकंड? मैंने से ट्राई किया। फर्स्ट वन से? यस सर। ओके, तो यदि हम फर्स्ट वन से ट्राई करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या इशू होगा मैं बताता हूँ आपको। इट इज बेसिकली साइन, नाउ इफ यू डिवाइड दिस 9 pi/3, it will be equal to 3 pi plus, and this is what 2 pi/3, 2 pi/3। now tell me, is this our angle? ये हमारा थीटा है? नहीं, ये हमारा प्यारा थीटा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि pi/3 का वैल्यू 60 होता है। 60 को यदि 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा कितना आएगा बताओ? 120 डिग्री। pi/3 is 60 ना, pi/3 is because pi is 180 degree, तो 180 degree by 3 is 60 degree, so 2 into 60 degree is how much? 120 degree। so is it r theta? Is it r para angle? It is not r para angle, nahi na? This is not r theta, that's why I will not choose this, I have to choose other one।
ओके हमें इस तरह से सिंप्लीफाई करना है न्यूमरेटर को, जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट द एंगल व्हिच लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। अंडरस्टूड नाउ? यस Yes, sir. ओके ठीक है। तो इनके बाद हमारे पास जो ऑप्शन बचता है, द सेकेंड ऑप्शन वी हैव हियर कि आई विल चूज 12 पाई वाला ऑप्शन। तो कैन आई राइट ऑन दिस इज अ साइन 11 पाई को मैं ऐसा लिखूंगा 12 पाई माइनस पाई अपॉन 3। यस Yes, sir. नाउ आफ्टर दिस कैन आई राइट ऑन द साइन 12 पाई बाय 3। इसको कैसे लिखेंगे हम बताइए? इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई माइनस पाई बाय 3। Now can we say that this is r theta because pi by 3 is 60 degree? Yes. Yes, sir. Okay. Now this 4 pi means left side or right side? This 4 pi. Left side or right side? Right left क्या? अच्छा आप कल नहीं थे सॉरी। इवन इंटू पाई रहेगा ना, इवन नंबर इंटू पाई, इनका मतलब हुआ राइट साइड। ओके राइट साइड। राइट साइड मतलब देखो ये एक्सिस है ना, तो ये राइट साइड वाला एक्सिस है और ये लेफ्ट साइड वाला एक्सिस है। ठीक है, तो इवन नंबर इनटू पाई मींस राइट साइड। तो अभी कितना है इवन नंबर? 4 पाई है ना, 4 पाई मतलब यहाँ पे हम लोग राइट साइड में है। अब माइनस कर रहे हैं तो माइनस तो नीचे होगा, समझा क्या? माइनस किधर होगा? यहाँ पे नीचे होगा। तो मतलब ये हो गया टोटल। यहाँ से हम यहाँ एक बार घूमे 2 पाई, फिर से एक बार रोटेशन के 4 पाई, लेकिन 4 पाई से हमें छोटा एंगल चाहिए, यहाँ पे चाहिए। तो ये हमारा हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट है ये बताइए? Which quadrant? Fourth quadrant ना? First, second, third, fourth quadrant. So right now our angle belongs to the fourth quadrant. Okay, you have to watch the recording. Okay, you have to watch the recording. तो आप मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया, आप एक बार वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। So this is the basically 4 pi means the right side. The 4 pi minus will give the position. रिया अंडरस्टूड? ये 4 pi मैंने आपने आंसर भी किया है मुझे। 4 pi माइनस जो है ये हमको देगा पोजीशन। तो राइट साइड देन डाउन जाना है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। ठीक है, मींस दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, बिकॉज ऑफ दिस फोर्थ क्वाड्रेंट, रिया जवले आर यू देयर? एम आई ऑडिबल टू यू? आर यू देयर? सर बीच में आपकी आवाज चली गई थी। ओके 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 ओके। रिया जवले आर यू देयर? ओके नो इशू, नहीं है ऐसा। तो बताइए यहाँ पे 4 पाई माइनस का मतलब क्या हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव। ओके, द फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, सो आई हैव टू राइट ऑन हियर व्हाट? माइनस। ये जो आपका पूरा टर्म है ना, पहले आप इनको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो पूरा टर्म है ना, इनका काम हो चुका है। इसका काम क्या हुआ? इसका काम ये हुआ कि ये बता रहा है कि इनका वैल्यू जो साइन का आएगा माइनस आएगा। सिर्फ माइनस का माइनस को डिफाइन करने के लिए आपने पूरा का यूज, इस पूरे टर्म को यूज किया है। तो रिमेनिंग क्या टर्म बच गया है? The remaining is what? Sin theta means sin pi by 3. Okay, and we know that what is the value of sin pi by 3? बताओ कितना होता है? तो minus will be the as it is. Sin 60 degree is what? √3 by 2. √3 by 2. So minus √3 by 2 is the answer. The same for the sec. कैसे मैं स्पीड से करूंगा? sec कितना है? 13 pi by 6. 13 pi by 6 को कैसे लिखूंगा मैं? 2 by √3 आएगा सर। तो ये हो जाएगा 12 pi plus pi by 6। यदि मैं इनको ब्रेक करूंगा तो कितना होगा? sec 12 pi by 6 is 2 pi plus pi by 6. Okay, now what is it? 2 pi plus belongs to which quadrant? The 2 pi plus 2 pi means what? Right side, plus means super, first quadrant. In the first, this is the first quadrant. In the first quadrant sec is positive, so plus, and after that sec कितना हो जाएगा? Sec pi by 6. तो sec pi by 6 is what? The sec 30 degree, which is 2 by √3. Okay बच्चा, sorry, 1 by cos pi by 6 लिख सकते हो, तो 2 by √3। इतना जोर से बोलना सब स्टार्ट कर देता हूँ। चलो आगे बताओ। What about this cot? सर आवाज गई वापस। Again? Hello? Hello? सर आपकी वीडियो फ्रीज हो गई। So 23 pi by 4. 23 pi by 4 को कैसे लिखेंगे हम लोग? तो मल्टीपल ऑफ 24 by pi minus pi. 24, हाँ 24 pi minus pi by 4. So it is basically कितना आ जाएगा? 24 से डिवाइड करोगे 4 को तो कितना 6 हो जाएगा। So it will be this cot 6 pi minus pi by 4. Now tell me that this angle belongs to which quadrant? 6 pi minus will define the what? Fourth The location. quadrant. The fourth quadrant. So this is because in the fourth quadrant the cot is negative. So minus Negative cot pi by 4. 45. Answer is -45.
minus Minus 1. one. Yeah. not minus 45. Okay, cot pi by 4. Cot pi by 4 is what? Minus 1. Understood? So इतना पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. ओके, विल कम बैक टू दिस पार्ट अगेन. ओके, जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना उस टाइम पे आपको फिर से दिखेगा. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. इफ यू वांट टू राइट इट ऑन, प्लीज राइट इट ऑन दिस. the next concept, now we will talk about the negative angle. For the negative angle, अभी तक हमने बात किया था पॉजिटिव एंगल के लिए, अब हम कुछ बात करेंगे नेगेटिव एंगल के लिए. ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो आपको बहुत सारा फॉर्मूला जो माइनस वाला होगा ना, अब इसी से समझ पाओगे यदि आपको ये फॉर्मूला क्लियर है. Let's assume that this is x, this is a y. Okay, this is a a. Here we have a triangle. Okay, this side is b, this side b. What about this part? इसका कोऑर्डिनेट में लिखूंगा तो कितना होगा? x a है, y कितना है? b है. ओके, तो x is a, y is b, तो a कॉमा b हो जाएगा. यदि नहीं लिखना चाहते तो कोऑर्डिनेट आपको इशू नहीं, आप ये यहाँ लिखिए o. Let's assume this point as a, this point as a b. Okay, so is this is a, this is b. Can we say that this will be equal to what? Root over a square plus b square. Yes, शुक्ला जी, समझ में आ रहा है? A Yes, square sir. plus, just a second, root over a square plus b square. Got this? Now if I measure this angle, I'll treat this angle as what? Theta. मैं इस एंगल का जो नाम दे रहा हूँ, ये एंगल जो है यहाँ से आप मेजर करोगे, ये एंगल कितना होगा बोलो? प्लस थीटा और माइनस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज. प्लस और माइनस? Plus theta. Plus Plus theta. theta. Plus theta. Okay, now I'll do the projection of the that upper triangle into the, and the first quadrant में जो triangle उसका fourth quadrant में I just take the projection. Projection मतलब क्या? यहाँ पे x axis पे एक प्लेन मिरर रख दीजिए, जो जिसमें अपना चेहरा देखते हैं ना, वो तो आपको एक इमेज नीचे दिखेगा इसका. ओके, तो वो इमेज कैसे होगा? तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है, जो मिरर के पास का पॉइंट है वो पास में दिखता है, और जो मिरर का दूर का पॉइंट है वो दूर में दिखता है. तो बी पॉइंट आपको कुछ नीचे दिखेगा, ये पॉइंट यहीं पे दिखेगा, बी पॉइंट आपको कुछ यहाँ पे दिखेगा, एंड सेम लेंथ. ओके, द इंपॉर्टेंट इज सेम लेंथ. तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा. जस्ट सेकंड. अच्छा छोड़ो, इतना तो एज्यूम कर ही सकते हो, इन दोनों को मिला दो. So let's assume this is the b and this is the what? B dash. Now if this is b, what about this? ये इसका कितना होगा? b, a to b dash का लेंथ कितना होगा? B. हैं? अरे क्या बोल रहे हैं? It will be the minus b. ऊपर का यदि पॉजिटिव तो नीचे का कितना होगा? माइनस b. Where b is a positive, b नेगेटिव नहीं है, b पॉजिटिव है. बट माइनस क्यों लग रहा है? क्योंकि हम इसका सिंबल इधर की तरफ मेजर कर रहे हैं, नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं. इतना पार्ट क्लियर हुआ? कोई तकलीफ है इसमें? बताइए मुझे. हाँ सर. ओके, थोड़ा सा एक और चेंज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ एंगल लिखना है. I'll assume that this OA side is equal to capital A. ऐसा लिया था ना, capital A. ठीक है. Now tell me what about this angle? ये एंगल कितना होगा? क्या नहीं? Negative theta. Minus theta. Why? Because now we are measuring an angle in the clockwise. Clockwise. तो ये तो साइड आपका हो गया A. This is a minus theta. So I assume here कि like OA का जो लेंथ है that is A. Okay, OB का जो लेंथ है वो कितना है? Not OB. ठीक है, OB पहले AB लिख लेते हैं. AB का लेंथ कितना आ जाएगा? B. ओके, OA का लेंथ कितना हो जाएगा? सॉरी, OB का लेंथ कितना हो जाएगा? रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. दैट विल बी आल्सो इक्वल टू OB डैश. व्हाई? सर आपकी आवाज म्यूट हो गई. सर वापस आपकी आवाज गई. ओके, अभी ठीक है? ऑडिबल? हाँ. ओके, ठीक है. हाँ सर अभी. सो इफ यू टॉक अबाउट OB डैश भी कितना होगा? OB डैश मींस व्हाट? दिस इज 90 डिग्री ना,
This is also 90 degree. वापस तो गई। so this is what, ये वाला OB डैश कितना होगा, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ना, हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, दिस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर भी क्या होता है, माइनस बी स्क्वायर इज ऑल्सो बी स्क्वायर बनली, तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम विद दिस पार्ट? अंडरस्टूड ये दोनों ट्रायंगल? हेलो, गॉट दिस? हेलो एवरीवन, गॉट दिस? सर आवाज सर आपकी आवाज ही नहीं है। पार्ट, तो ओबी डैश पार्ट विल बी व्हाट, ओबी डैश पार्ट कितना होगा, रूट ओवर a square plus minus b whole square, but we know that minus b whole square is basically what, it is a b square only, so it is a square plus b square. Understood these two part? ठीक है, इसलिए यहाँ का जो होगा that will be the only the same as the ob and ob dash same रहेगा, ठीक है। what about ab dash? ab dash कितना है, माइनस b। minus b. अभी जो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ उसको थोड़ा सा देखिएगा, फिर आपको वो चीज पार्ट पूरा क्लियर होगा। इफ आई टॉक अबाउट व्हाट विल बी द साइन थीटा हियर, कितना होगा, अभी आपका टाइम है बोलने का, बताइए साइन थीटा क्या होगा हियर? यस, सर b बाय रूट a स्क्वायर प्लस बी अपॉन b स्क्वायर। बी बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। In parallelly, if I solve here, what will be the sign minus theta? बताइए। माइनस बी अपॉन It will be the minus b upon root over a square plus b square. So can we write down this is equal to minus, what is this part? What is this part? Sin theta na? B by root over. So can we say that it is a minus outside and then sin theta? So from here we got one relation, sin minus theta is equal to minus sin theta. Understood? Now if we talk about for the cos theta is what? What is cos theta? सर a बाय ए रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। A by root over a square plus b square by adjacent upon hypotenuse. What about cos minus theta? सर आवाज गई वापस। सर फिर से आवाज गई। What about cos minus theta? Yes. cos थीटा सेम ही रहेगा। So cos minus theta equal to what? कितना आएगा cos minus theta? सर सेम ए रहेगा। अपॉन ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी That will be the same. The adjacent, that is a upon root over a square plus b square. Clear? यस सर। Okay. And this is also equal to what? ये किसके बराबर है? It is equal to cos theta. So from here, can we say that cos minus theta equal to cos theta? Okay. एक चीज यहाँ पे बताइए, फिर से रिया आवाज गई। रिया Ambekar, are there? Yes, sir. Now this minus theta belongs to which quadrant? Fourth quadrant. This minus indicate that the position of angle is what, in the fourth quadrant. In the fourth quadrant, cos is, Positive. that's why we got here positive. So this is the one sense. Okay, आप ऐसे भी remember रख सकते हो. So first we got here sin minus theta equal to minus sin theta, cos minus theta equal to cos theta, and we know that if you look at this now, this minus belongs to which quadrant? Fourth quadrant. In fourth quadrant, sin is negative. That's why I will get here negative sin theta. Okay, now what about the tan? Tan minus theta, oh no, well, first tell me tan theta. Tan theta equal to what? What is tan theta? ए बाई बी बी बाई B by A. What about tan minus theta here? माइनस बी बाई Minus B by A. बी But बाई what is the B by A? Tan theta, so minus tan theta. tan थीटा। So can we write down tan minus theta? We got here, that is equal to what? Minus tan theta. And others you can prove with the help of same method. So from here, can we write down a set of formula, and the set of formula is sine, just a second. The sine
minus theta, sine minus theta equal to minus sine theta, cos minus theta equal to cos theta, tan minus theta equal to minus tan theta. What is the reciprocal of cosine? Cosec. Cosec minus theta equal to minus cosec theta. What is the reciprocal of cos? Sec. Sec minus theta equal to plus sec theta. And what about the reciprocal of cos? Tan. Cot. Cot minus theta equal to minus cot theta. You got this all understood this part? Yes, sir. Okay, so please write on all this.